Hello friends, welcome on my UPSC. Today we are going to discuss some important series for Indian polity. If you are preparing for any competitive exams, it doesn't matter you are preparing for UPSC, but if you are preparing for state PSC or any other competitive exam, if you want to gain some knowledge or attempt the questions in exam in right way with correct answer, you have to read Indian Polity by Lakshmikant. बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो लक्ष्मीकांत की इंडियन पॉलिटी है उसकी दो बुक्स अवेलेबल होते हैं। एक बुक है जिसमें डेस्क्रिप्ट थ्योरेटिकल अवेलेबल है पोर्शन, वो यूपीएससी पीएससी एग्जाम्स के लिए है, जो हर साल अपडेटेड होके मार्केट में अवेलेबल है वो। और एक दूसरी बुक है एम लक्ष्मीकांत की जो जिसमें चैप्टर वाइज पॉलिटी के एमसीक्यूज दे रखे हैं, क्वेश्चन बैंक है ओनली। ये बुक भी मार्केट में अवेलेबल है और काफ़ी अच्छी बुक है और चैप्टर वाइज है, जो इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। इसमें से एग्जाम्स में क्वेश्चन आते रहते हैं रिपीटेड होली, प्रीलिम्स हो यूपीएससी का या स्टेट पीएससी एग्जाम्स हो, अदर एग्जाम्स में भी काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अब हम आने वाले कुछ टाइम में चैप्टर वाइज है जो एम लक्ष्मीकांत के एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। आज ये है जो इसका पहला चैप्टर है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये एम लक्ष्मीकांत की जो जिस बुक की मैं बात कर रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक की जो बुक है, उसी में से हैं ये सारे क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे सॉल्व करने में सहूलियत हो जाएगी। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, ये जो क्वेश्चन बैंक है इनका, तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, consider the following statements. Under the Government of India Act 1990, the Indian legislature was made more representative and for the first time bicameral. Okay. The Government of India Act 1935, बहुत सारे लोगों को पता होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें इस एक्ट से ली गई है। 1935 का जो एक्ट है, prescribed a federation taking the provinces and Indian states as units. So, which of the statements given above are correct? तो देखते हैं इसमें से कौन से करेक्ट है। फर्स्ट जो स्टेटमेंट है, ये कह रहा है कि जो इंडियन लेजिस्लेचर है वाज मेड मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड फॉर द फर्स्ट टाइम बाइकैमरल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999। This one is absolutely correct one. The Government of India Act 1935 prescribed a federation taking the province and the Indian states as units. This one is also correct one. Both the statements are correct. Third one is the right answer. Okay. Next question. सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990? ओके। इंट्रोडक्शन ऑफ डायरेसी इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ऑफ द प्रोविंसेस, इंट्रोडक्शन ऑफ द सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम्स, devolution of legislative authority by the center to the provinces, expansion and reconstitution of center and provincial legislature. First, second, third, fourth, and first, second, fourth, first, third, fourth. Okay. So, जब ये बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 की, सो
फर्स्ट वन इज करेक्ट वन. इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, ये 1919 का एक्ट नहीं है. Devolution of legislative authority by the center to province. This one is right one. It was the principal feature of Government of India Act 1919. Expansion and reconstitution of central and provincial. This one is also correct one. Second statement is incorrect because this one is under the 1909 Act. Okay. So the correct answer is first, third and fourth. This one is the correct answer. Next question. Consider the following statements. The first Public Service Commission in India was set up in the year 1926 on the recommendation of Lee Commission on the Superior Civil Services in India. Okay, this one is correct one. The Government of India Act 1935 provided for setting up a Public Service Commission at both the federal and province level. This one is also correct one. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो फर्स्ट पब्लिक सर्विस कमीशन इट वाज सेटअप इन द ईयर 1926 बाय द रिकमेंडेशन ऑफ ली कमीशन एंड द सेटिंग अप ऑफ पीएससीज जो पब्लिक सर्विस कमीशंस हैं वो 1935 के एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग सेटअप हुआ है उनका बोथ प्रोविंशियल एंड फेडरल लेवल पे. बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट वन. Next question. Fourth one. Which one of the following acts provided the setting up of a board of control in Britain through which the British government could fully control the British East India Company's civil, military and revenue affairs in India? ये किस एक्ट के अकॉर्डिंग जो सेटिंग अप हुआ था बीसीबी का बोर्ड ऑफ कंट्रोल इन ब्रिटेन जिससे वो वहाँ से ब्रिटिश गवर्नमेंट फुली कंट्रोल कर सकती थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में सिविल मिलिट्री रेवेन्यू अफेयर्स को, मतलब टोटल कंट्रोल जिसको बोलते हैं हम, टोटल कंट्रोल किसके अकॉर्डिंग हुआ था? एंड इट वाज पिट्स इंडिया एक्ट 1984. ओके, दिस वन इज द राइट वन. Match the list first with list second. List 1 and list second. Acts and provisions. These are the acts and these are the provisions. These are the acts. So, the Government of India Act 1935. And what was the provision? Transfer of power from the East India Company to the British Crown. Okay. The Indian Council Act 1909 envisaged dominion status to India. The Government of India Act 1919 introduction of provincial autonomy. The Government of India Act 1858 introduction of diocese in province, introduction of separate electoral for Muslims. अब ये कुछ कोड्स दे रखे हैं तो कि इनमें से कौन कौन से मैच हो रहे हैं लिस्ट 1 से. ओके, इनको मैच करवाते हैं. देखिए ये जो है इसका करेक्ट आंसर है, ये इसके साथ मैच कर रहा है. दिस वन इज विथ
fourth one. This one, and D is for first one. So A is with third, B with four, C with fifth, and D with first. 3/5 4/1 is the correct answer. B is the right answer. आप इसको एक बार और अच्छे से पढ़ लेना. Six, next one. Partially responsible governments in the provinces were established under which one of the following acts? जो गवर्नमेंट्स पार्शियली रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स थी प्रोविंसेज में एस्टेब्लिश हुई थी, वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग हुई थी? इट वाज 1919 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जो 1919 का एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो प्रोविंसेज है उसमें पार्शियली रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई गई थी. फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर. The initial idea of recruitment of merit principle can be traced to the, ये जो है इनिशियल आइडिया ऑफ रिक्रूटमेंट ऑन मेरिट प्रिंसिपल कैन बी ट्रेस्ड टू द, जो मकाले कमेटी है उसमें ट्रेस हुआ है. उसकी मकाले कमेटी की जो रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट में ये आइडियाज हैं इनिशियली मेरिट प्रिंसिपल बेस पे रिक्रूट किया जाना चाहिए. ईमानदार तो अंग्रेज भी थे थोड़े बहुत. नेक्स्ट वन. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द रूल्स मेड अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर नॉन एज द डिवोल्यूशन रूल्स. देखिए सारे क्वेश्चन हैं जो एम लक्ष्मीकांत की बुक के हैं, ठीक है, तो आप इनको थोड़ा सीरियसली लेके ही करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे हैं. जो आप या तो नीचे लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर खुद के यहाँ से भी नोट्स बना सकते हैं. और अगर आप ये सीरीज़ रेगुलर चाहते हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको टाइम पे नोटिफिकेशन या अवेयरनेस जो भी है मिलता रहेगा. सो during the period of British rule in India, the rules made under which one of the following were known as devolution rules. किसको बोला जाता था? डिवोल्यूशन रूल है जिसकी बात हम अभी कर रहे थे, पार्शियली रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, इसको ये 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, इसी को डिवोल्यूशन रूल बोला गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है? इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन, ओके. इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अभी हमने पढ़ा कि ये रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं था, ऊपर क्वेश्चन में आया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 99 प्रोविंशियल ऑटोनॉमी नहीं, पार्शियल ऑटोनॉमी था. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डायरेसी इन स्टेट नहीं, ये इसके 35 में आता ही नहीं है ये. सो फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन. इंडियन काउंसिल एक्ट प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शंस, दिस वन इज द करेक्ट वन. बाकी ये इंटरचेंज है और ये सही नहीं है. नेक्स्ट वन. Assertion and reason. Notwithstanding the introduction of provincial autonomy, the Government of India Act 1935 retained control
of the central government over the provinces in the certain sphere region. The governor was required to act in his own discretion in certain matters for which he was to act without ministerial advice and under the control and direction of the governor general. So both A and R are individually true and R is the correct explanation of A. This one is the correct answer. Next one. In the federation established by the Act of 1935, रेजिडरी पावर्स वर गिवन टू द, जो रेजिडरी पावर्स है वो गवर्नर जनरल के पास हुआ करती थी जब ये फेडरेशन एस्टेब्लिश हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग। तो जो रेजिडरी पावर हुआ करती थी वो गवर्नर जनरल के पास हुआ करती थी। सी इज द राइट आंसर। देखिए जो नेक्स्ट इसका पार्ट आएगा उसमें आपको साथ में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं मिल रहा है तो नेक्स्ट पार्ट में आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा इसका, या फिर आप नीचे लिंक में से जाके भी डाउनलोड कर सकते हैं। इनको मैच करवाना है। ये एक्ट्स हैं, ये प्रोविजंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 है ये इसके साथ एसोसिएटेड है। इंडियन काउंसिल एक्ट ये इसके साथ एसोसिएटेड है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसको मार्लियामेंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं, ये इसके साथ एसोसिएटेड। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1999, ये डायरेचिन प्रोविंसेस, ये सही है। सो 2, 3rd, 5th and 4, this one is the correct matching. 2, 3, 5th, 4, this one is the right answer. Next one, the Government of India Act 1919 was based upon. So this was the based on RM Awards, रामसे मैकडोनल्ड अवार्ड्स, इट वाज बेस्ड ऑन। आप इसको अच्छे से ध्यान रखना ना, ये नहीं, दिस वन इज द इनकरेक्ट। दिस इज 1919 इज मॉन्टे चैम्सफोर्ड रिपोर्ट। जो 1909 का है वो मार्लियामेंटो है, और 1919 का है वो है जो मॉन्टेग चैम्सफोर्ड रिपोर्ट है। रामसे मैकडोनल्ड अवार्ड अलग है। सो बी इज द करेक्ट आंसर। Next one. Under which one of the following acts was the communal electorate system introduced by the British in India for the first time? फर्स्ट टाइम कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम, मतलब जो कम्युनल है वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्टोरेट सिस्टम में। ये पहली बार कब हुआ? फर्स्ट टाइम ये जो मार्लियामेंटो रिफॉर्म्स है उन्हीं में हुआ है। 1909 का है जो ये चैम्सफोर्ड है, जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड है, और ये इंडियन जो इलेक्टोरल सिस्टम है, रिप्रेजेंटेशन है, उसका इसी एक्ट के अकॉर्डिंग आता है। सो फर्स्ट टाइम जो कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम चालू हुआ है वो इस एक्ट के अकॉर्डिंग हुआ है। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। व्हाट वर द salient features of Government of India Act 1935?
इसके सेलिएंट फीचर्स क्या है, हम देखते हैं इसके क्या क्या सेलिएंट फीचर्स हैं। अबोलिशन ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया, दिस वन इज द राइट वन। डायरेसी इन द एट द सेंटर, पहले जो आपने पढ़ा होगा डायरेसी इन द एट द प्रोविंसेस, बट 1935 में के अकॉर्डिंग जो साइलेंट फीचर है इसके ये है कि सेंटर में भी डायरेसी सिस्टम हो गया था इसमें। अबोलिशन ऑफ द डायरेसी इन स्टेट, बिल्कुल। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल कोर्ट, ये भी सही है। सो ऑल दीज आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे, आप अच्छे से करना इनको। दिस वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिस्ट मैच करनी है। फीचर्स एंड एक्ट, फेडरल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल स्कीम ऑफ गवर्नमेंट इज पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। डायरेसिन प्रोविंशियल, ये हम सबको पता है डायरेसिन प्रोविंशियल का, मॉन्टेग्यू सैम्सफोर्ड। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का अभी अभी हमने ऊपर पढ़ा 1909 का फर्स्ट टाइम कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का, इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन का। एंड दिस वन इज द, सो फर्स्ट में थर्ड है, सेकंड में फोर्थ है, 3/4 फर्स्ट सेकंड। 3/4 फर्स्ट सेकंड, बी इज द करेक्ट आंसर। दिस वन इज द राइट वन। आप इनको एक बार और रिवाइज करोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे आपके भी, और एक टाइम बाद ये सब चीज़ें आपके रिपीट होने लग जाएगी तो थोड़ा कंसेप्ट भी बन जाएगा, मेमोराइज हो जाएंगे, रिवीजन भी हो जाएगा। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे तो आपको इजी और हो जाएंगे। Who among the following was the finance minister of India in the interim government during 1946 and 47? ओके, तो फाइनेंस मिनिस्टर कौन था जब जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उस टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे लियाकत अली खान, ये फाइनेंस मिनिस्टर थे। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following act laid the foundation of the British administration in India? British administration in India, which one of the following acts laid the foundation? किस में शुरुआत मानी जाती है ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की? एंड दिस वन इज द रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर ध्यान रखना इसको। नेक्स्ट वन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बुक बहुत अच्छी है, आप इसके क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते, आपको सारे क्वेश्चन करोगे तो लगभग हर एग्जाम में आते हैं इसके साथ। एम लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन आप सबको पता होगा। ये भी मैचिंग का है। डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, प्रोविजन और एक्ट्स है। तो जो डेजिग्नेशन है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, पहले क्या हुआ था गवर्नर जनरल थे, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, ये डेजिग्नेशन किसके अकॉर्डिंग हुई है? तो इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं इसके नीचे के।
से, ठीक है। सो ये जो है इसकी डेजिग्नेशन इसी के अकॉर्डिंग हुई है, चार्टर एक्ट 1833। डायरेसी इंट्रोड्यूस्ड इन इंडियन गवर्नमेंट, डायरेसी इंट्रोड्यूस हुई है इंडियन गवर्नमेंट में, ये 1919 का जो एक्ट है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एक्ट, उसमें हुई है। ट्विन फीचर्स ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, ट्विन फीचर्स जो ऑल इंडिया फेडरेशन की जब भी बात होती है तो 1935 के एक्ट की बात होती है। और कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1855 था, 1858 का। सो द करेक्ट आंसर इज दिस वन, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। Who among the following was the first law minister of India? Who was the first law minister of India? Everybody must know that. फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, बिकॉज संविधान के जो बोला जाता है फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर, ही वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वन, विथ रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन इज पॉपुलरली नॉन एज। ब्रिटिश जो रूल था इंडिया में, ब्रिटिशर्स का रूल था उस टाइम, जो स्टेट्यूटरी कमीशन हुआ करते थे उनको किस नाम से, वो किस नाम से पॉपुलर थे? विथ रेफरेंस टू द पीरियड, सो द इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन इज पॉपुलरली नॉन एज, जो ये साइमन कमीशन है, इट वाज द इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल? तो जो गवर्नर जनरल की काउंसिल थी उसमें लॉ मेंबर फर्स्ट इंडियन कौन थे? सत्येंद्र सिन्हा वाज द फर्स्ट अपॉइंटेड एज लॉ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल, ब्रिटिश रूल के टाइम की बात है। तो ये थोड़ा सा जो फर्स्ट चैप्टर है इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एम लक्ष्मीकांत के बुक का पहला चैप्टर था। अब इसका नेक्स्ट चैप्टर आएगा, उसमें आपको थोड़ा डिटेल में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स, थैंक यू, गुड लक।